أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آیت نمبر 116 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. وَقَالُوا اور انہوں نے کہا. قاف واو لام اس کا روٹ ہے. اتخذ بنا لی. اتخذ یتخذ اتخاذ بنا لینا لے لینا. اللہ اللہ نے ولدن کوئی اولاد. ولدن بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے چائلڈ، اور یہ اسم جنس ہے جو سنگولر، پلورل، فیمیل، میل سب کے لیے آتا ہے. سبحانہ پاک ہے وہ. یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور آپ یہاں دیکھیں اتخذ اللہ ولدا بنا لی اللہ نے ایک اولاد. ہم کبھی اس طرح سے نہیں کہتے کہ he has begotten a son, he took a son. ہم کہتے ہیں he has a son, اس کا ایک بچہ ہے، اس نے بچہ بنا لیا تو اس نے بچہ لے لیا. اس طرح سے کبھی نہیں کہا جاتا ہے، ایک اسٹرینج طریقے سے کہا جا رہا ہے. تو اس آیت سے مطلب یہ بنتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے، بلکہ یہ کہا کہ اللہ نے اپنے لیے ایک بیٹا بنا لیا. یعنی تمام انسانیت میں سے، انسانوں میں سے کسی ایک کو اللہ نے اپنے بیٹے کی طرح چن لیا. جیسے کہ پچھلے زمانے میں کچھ سیولائزیشنز میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ راجا ضروری نہیں کہ اپنے ہی بیٹے کو اپنا سکسیسر چنے، بلکہ اپنی پرجا میں سے یا اپنی سینا میں سے کوئی ایک ایسا شخص جو اسے لگے کہ یہ راجا بننے کے لائق ہے، یعنی اس کی باڈی، اس کی ہائٹ، اس کی بلڈ، اس کی سکلز، اس کی فائٹنگ سکلز، اس کی اسٹریٹجک پلاننگ وغیرہ دیکھ کر اگر وہ سوچے کہ یہ راجا بننے کے لائق ہے تو وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح چن لیتا تھا اور پھر بعد میں اسے اپنا سکسیسر بنا دیتا تھا. حالانکہ اس بات کو بھی اللہ نے اپنے لیے بہت زیادہ ناپسند کیا ہے. سبحانہ پاک ہے وہ. ہی از ٹو پرفیکٹ کہ اس کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کیے جائیں یا یہ کہا جائے کہ اللہ نے ایک اولاد بنا لی ہے. تسبیح بھی اسی سے ہے. سبحان کا لفظی معنی ہوتا ہے تیرنا یا فلوٹ کرنا، یعنی اللہ کے لیے ہم صرف وہ بات کہیں جو اس کی شان کے لائق ہے. جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو ہم اللہ کی شان بیان کرتے ہیں. اور فلوٹ کرنا یا تیرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ایک ایسے مقام پر رکھے کہ اس سے نیچے نہ آنے دیں، اور وہ مقام کسی اور کا نہیں ہو سکتا. تو تسبیح کا معنی یہ ہے کہ نہ تو کسی مخلوق کو اللہ کے مقام کے برابر مقام دیا جائے یا کسی کو اتنا اونچا اٹھایا جائے کہ وہ اللہ کے مقام کے برابر ہو جائے، اور نہ اللہ کے مقام کے اندر کوئی کمی کی جائے یا کسی مخلوق کے مقام کے برابر اللہ کے مقام کو گرایا جائے. سبحانہ ہر عیب سے پاک ہے وہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے لیے بہت زیادہ ناپسند کیا ہے، سخت ناپسند کیا ہے. اور اس بات کو ثابت کرتی ہے ایک حدیث جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے، یعنی آدم کی اولاد نے مجھے جھٹلایا اور مجھے گالی دی. اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں ہوگی اور مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا حساب کے لیے، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے ایک اولاد بنا لی ہے، بیٹا بنا لیا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے گالی کی طرح سمجھتے ہیں. بلکہ لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے. اسی کا ہے سب کچھ، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے. تو پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے، جیسے کہ انسان، اسے اپنے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. بچوں کی انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کا خیال رکھے، ان کے بزنس کا، ان کی پراپرٹی کا خیال رکھے، ان کے مرنے کے بعد ان کی چیزوں
के वारिस बने। कुल्लु लहू कानितून, सब उसी के लिए फर्मा बरदार हैं, सब उसी की इबादत करते हैं, उसी के सामने झुके हुए हैं, उसी की इताअत करते हैं। कानितून कानित की जमा है, कुनूत जो हम दुआ पढ़ते हैं वो भी इसी से है। कुनूत कहते हैं आजिजी और इनकिसारी के साथ अल्लाह की इबादत करना। और कुनूत का एक माना होता है दावाम दवाम यानी कि ठहराव, और तसलसल यानी हमेशा इबादत करना, और एक तसल्ली और सुकूत के साथ ठहराव के साथ अल्लाह की इबादत करना। तो कुनूत बहुत ज्यादा खूबसूरत इबादत है, यानी ऐसी इबादत जिसमें आजिजी हो, इनकिसारी हो, ह्यूमिलिटी हो, सबमिसिवनेस हो, जिसमें खामोशी के साथ, ठहराव के साथ, सुकूत के साथ इबादत की जाए। जो इबादत ऐसी हो जो हमेशा की जाए, यानी मुसलसल की जाए, कभी ऐसा कभी करी कभी नहीं करी ऐसी इबादत नहीं, बल्कि हमेशा इबादत में हो, फरमा बरदारी के साथ इबादत की जाए। कुल्लु लहू कानितून, सब के सब उसी के लिए फर्मा बरदार हैं, सभी उसकी इबादत कर रहे हैं, सभी उसकी पाकी बयान कर रहे हैं, सारी मखलूक उसके सामने झुकी हुई है। वो भी जिसको तुम अल्लाह के बराबर मकाम देते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनको तुम अल्लाह की औलाद कहते हो, वो भी अल्लाह ही के फर्मा बरदार हैं, वो भी अल्लाह ही से मांग रहे हैं। हर मखलूक अल्लाह ही का हुक्म मानने वाली है। आयत नंबर 117, बदीउ इजाद करने वाला है, अस्समावाती आसमानों का, वल अर्दी और जमीन का, व इदा और जब, क़दा वो फैसला करता है, अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा तो बेशक, यकूलु वो कहता है, लहू उसके लिए, कुन हो जा, फ़यकून तो वो हो जाता है। बदीअ इजाद करने वाला है, ओरिजिनेटर पैदा करने वाला है, बिना मिसाल के नए सिरे से पैदा करने वाला है, बिना किसी रॉ मटेरियल के, बिना किसी एग्जिस्टिंग आइडिया के, बिना किसी ब्लूप्रिंट या मॉडल के, बिना किसी नमूने के। खालिक का माना होता है पैदा करने वाला, लेकिन बदी का माना होता है क्रिएटर आउट ऑफ नथिंग। बिदत जो होती है उस वो भी इसी से निकला है, बदी से, जिसमें दीन के मामले में कोई नई चीज शुरू करना जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं हो, जब मन से अल्लाह की इबादत के कोई नए तरीके निकाल लेना, उसे कहते हैं बिदत करना, वो भी इसी वर्ड से निकला है। अब इंसान किस चीज को क्रिएटिविटी कहते हैं? जब कोई शख्स कोई पुरानी एग्जिस्टिंग चीजों को इस्तेमाल करता है, पुराने एग्जिस्टिंग आइडियाज को इस्तेमाल करता है, उसमें कोई थोड़ा सा फेरबदल करता है, कोई चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट करता है, कोई चेंजेस करता है, और फिर कोई नई चीज बनाता है, और फिर कहता है कि ये देखो मेरी न्यू क्रिएटिविटी, ये मैंने इजाद किया है। लेकिन अल्लाह जब कोई चीज बनाता है तो उसकी कोई ब्लूप्रिंट पहले से एग्जिस्टिंग नहीं है। मछली जब अल्लाह ने बनाई, जब समंदर बनाया, जब सांप बनाया, जब फूल बनाए, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, इंसानों को बनाया, इंसानों की उंगलियों को बनाया, हाथों को बनाया, तो अल्लाह के पास ना पहले से मौजूद कोई रॉ मटेरियल था, और ना कोई पहले से मौजूद आइडिया था जिसे देखकर आइडिया लिया गया हो। रियल ओरिजिनेटर, रियल क्रिएटर अल्लाह है। वह इदा कदा, और जब कदा वो फैसला करता है, आखिरी फैसला करता है, अमरन किसी भी काम का, फ़इन्नमा तो बेशक, यकूलु वो उसके लिए कहता है, लहू हो जा, कुन तो वो हो जाता है, फ़यकून। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी चीज का फैसला करता है तो उसके लिए कुन कहता है और वो चीज हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी कलिमाए कुन से पैदा किया है। और आप देखें पिछली आयत में हमने पढ़ा कि वो लोग जो मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेने से रोकते हैं या कोशिश करते हैं मस्जिदों की खराबी में या उसको वीरान करने में, और इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा कि किस किस तरह से लोग मस्जिदों की खराबी की और मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करते हैं, लोगों को उसमें अल्लाह का नाम लेने से रोकते हैं। मस्जिद जब अल्लाह का हक नहीं देती है तो उसमें शिर्क चालू हो जाता है, लोग अल्लाह के साथ शिर्क करने लगते हैं। रिलीजन में करप्शन बढ़ता है इग्नोरेंस की वजह से, और इग्नोरेंस बढ़ती है करप्शन की वजह से, ये दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। आयत नंबर 118, वकाला और कहा, अल्लदीना उन लोगों ने जो, ला यालमूना नहीं इल्म रखते, लौला क्यों नहीं, युकल्लिमुना कलाम करता है हमसे, अल्लाहु अल्लाह ताला।
ला यालमूना, जो इल्म नहीं रखते थे, उम्मी थे। मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है कि वो कहते थे कि हम खुद अल्लाह से बात करना चाहते हैं, अल्लाह हमसे क्यों नहीं बात करता, ताकि हम खुद अल्लाह से कंफर्म कर लें कि आप अल्लाह के नबी हैं। या ये कि जो कुछ अल्लाह हमसे चाहता है वो खुद हमें क्यों नहीं बताता, अगर अल्लाह चाहे तो सीधा हमें बता सकता है। औ तातीना, या आती हमारे पास आयतुन, कोई निशानी, हमारे पास अल्लाह की कोई आयतें क्यों नहीं आती हैं। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के नबी होने का प्रूफ मांग रहे हैं। ऐसा आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते कि अल्लाह के नबी होते हैं और उनके पास अल्लाह की वही आया करती थी। अगर ये सच है तो सिर्फ उन्हीं के पास क्यों, हमारे पास क्यों नहीं आती अल्लाह की वही, हमारे पास आनी चाहिए। और आज भी लोग प्रूफ मांगते हैं, कहते हैं अच्छा ये प्रूफ करके दिखाओ, अच्छा ये बात साबित करके बताओ, तब हम मांगेंगे कि ये अल्लाह की किताब है। कज़ालिका, इसी तरह, क़ाला कहा, अल्लदीना, उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे, मिस्ल क़ौलिहिम, मानिंद इनकी बात के, मिसाल या एग्जाम्पल इन्हीं की जैसा, एग्जैक्टली सेम थिंग। और मैंने इसका माना एग्जैक्टली इसलिए किया है क्योंकि कज़ालिका जो आया है इसी तरह, और मिस्ल यानी एग्जाम्पल, तो जब दोनों वर्ड्स एक साथ एक जुमले में आते हैं तो उसका माना बनता है एग्जैक्टली। दो बार बात को कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली सेम थिंग पहले भी लोग कह चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पिछली कौमों ने भी इसी तरह से पूछा था, इसी तरह की बातें की थी। मुतशाबहत कुलूबुहुम, मुतशाबे हो गए दिल इनके, रिजेंबल करते हैं दिल इनके, एक जैसे हैं दिल इनके। शीन बाहा इसका रूट है तशाबहा या तशाबहु, मुतशाबे। शुबह भी इसी से है और शबीह भी इसी से है। पीछे भी हमने पढ़ा है वऊतू बिही मुतशाबिहा, और गाय के किस्से में भी हमने पढ़ा है कि हमें, कि गाय हम पर मुतशाबे हो गई है। मिलते जुलते हैं इनके दिल, एक जैसे हैं इनके दिल। कद तहकीक, बय्यन्ना, वाज़े कर दी हमने, बाना यबीनु बयान, बयान खोल खोल कर बयान करना, बय्यन्ना हमने वाज़े कर दी, अल आयाती आयात, लिकौमी उन लोगों के लिए, यूकिनून जो यकीन रखते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह हमसे क्यों नहीं कलाम करता, क्यों नहीं हमारे पास आयतें आती, तो उसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसी बातें पिछली कौमों के लोग भी कर चुके हैं और उनके दिल इनसे मिलते जुलते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कद तहकीक बय्यन्ना, वाज़े कर दी है आयतें उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। और सदियों से लोग ये कहते आ रहे हैं और हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी आयतें दी है, अपने मोजज़ात, अपने साइंस, अपनी निशानियां बताई हैं लोगों को नबियों के जरिए कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हर नबी कोई ना कोई मौजिज़ा लेकर आए और उन्होंने अपनी कौम को ये साबित किया कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिज़े के तौर पर कुरान दिया गया। यही अल्लाह की बात है, यही अल्लाह का कलाम है और यही अल्लाह की आयतें हैं और कुरान के ज़रिए ये तुम्हारे पास भी आई है। इसके अलावा और कोई मौजिज़ा और कोई निशानी अल्लाह तुम्हें नहीं देने वाला इस बार। सारे रसूलों के मौजिज़े उनके दुनिया से चले जाने के बाद आने वाली जनरेशन्स, आने वाली नस्लों के लिए बस किस्से और कहानी की तरह हो गए थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजिज़ा दिया गया है वो ता क़यामत ज़िंदा है, हर एक के लिए है। अल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिज़े के तौर पर कुरान दिया है। कुरान अल्लाह का कलाम भी है, उसमें अल्लाह की आयतें भी हैं, निशानियाँ भी हैं, मौजिज़े भी हैं। और इस मौजिज़े को देखने के लिए, जानने के लिए, महसूस करने के लिए अपने आप को हम्बल करके इसे लेना होगा, इस पर यकीन करना होगा। फिर इसके मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में आप खुद देखेंगे। हर एक का अलग-अलग एक्सपीरियंस है, हर एक के लिए अलग-अलग मौजिज़ा है, सबका एक जैसा नहीं है। कुरान सबके लिए एक जैसा नहीं मौजिज़ा दिखाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लिए कौमी यूक़िनून, उन लोगों के लिए जो इस पर यकीन करते हैं। इन्ना, बेशक हमने, इन्ना में दो लफ्ज हैं, इन्ना और नून अलिफ का ना, यानी बेशक हमने, ये दोनों मिल गए हैं और एक लफ्ज बन गया है। इन्ना अरसलना का, भेजा हमने, इसमें जो नून अलिफ आ रहा है उसका भी माना है हम, तो भेजा हमने आपको, का जो है उसका माना है आप। तो
अरसला युरसिलु इरसाल, अरसलना का रा सीन लाम इसका रूट है, भेजा हमने आपको। रसूल रिसालत सब इसी से है, और ना यानी हमने यानी अल्लाह ने, आपको यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बिल हक़ साथ हक के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप बेफिक्र रहें, इनकी बातों की परवाह ना करें, किस कोई सबूत देने की इन्हें जरूरत नहीं, आप पहले से ही हक दिए गए हैं, कुरान हक है, आपका काम है सिर्फ खुशखबरी देना और डराना बस। बशीरन, बाशारा, बशारत कहते हैं ऐसी खुशखबरी जो बंदा सुनकर खुश हो जाए। व नदीरन, अनजरा युनजिरु इंजार, नून जारा इसका रूट है वार्न करना, खबरदार करना, डराना, अंजाम से डराना। तो अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो नेक है, जो अच्छे अमल करते हैं, अमल साले करते हैं, जो ईमान लाते हैं, और खुशखबरी ऐसे अच्छे काम करने वालों के लिए, और खुशखबरी और उम्मीद उन लोगों के लिए भी है जो रास्ते से भटक गए हैं लेकिन तौबा करके अल्लाह की तरफ लौटना चाहते हैं, और डरावा उन लोगों के लिए है जिन्होंने इनकार कर दिया है, कुफ्र कर दिया है, जो गलत रास्ते पर जा चुके हैं। वला तुसअलू, और ना आपसे सवाल किया जाएगा, अन अस्हाबिल जहीम, साथियों के बारे में जहन्नम के। अस्हाब कहते हैं साथियों को, ये साथी का प्लूरल है यानी साहिब का प्लूरल है अस्हाब। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है और कहा जा रहा है कि बेशक हमने आपको भेजा है हक के साथ, आपके पास ऑलरेडी हक है, आप इनकी बातों की फिक्र ना करें, आपका काम है सिर्फ इनको खुशखबरी देना और डराना। और इसके अलावा जो लोग आपकी मुखालिफत करते हैं, जो आपका इनकार करते हैं, जो अल्लाह का इनकार करते हैं, दीन का इनकार करते हैं, जो जहन्नम के साथी हैं, उन लोगों के बारे में आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, आप सिर्फ अपना काम करिए, सिर्फ इन्हें डराइए, इन्हें खबरदार करिए। जहीम जो है वो जहाना से निकला है, जिसका लफ्जी माना होता है शेर का घूरना। जैसे शेर अपने शिकार पर नजर टिकाकर घात लगाकर बैठा होता है शिकार करने से पहले, फिर जब शिकार उसके खास एंगल पर आ जाता है तो वो जोर से हमला करता है और उसे दबोच लेता है और अपने शिकार को अपने से जाने नहीं देता। तो जहन्नम भी इसी तरह से घात लगाए हुए बैठी है, अपने अंदर आने वालों के लिए ताक लगाकर बैठी हुई है, और जब बदकार लोग पुलिस इराद से गुजर रहे होंगे तो वो उन्हें झपट लेगी, उन्हें निगल लेगी। और जहीम का माना है आग का तेज भड़कना। तो जहन्नम जो है वो भड़कती हुई आग है। तो यहाँ इस आयत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जो लोग आपकी बात नहीं मानते, उनकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है। तो इस बात से हमारे लिए भी सबक है। कई बार हम लोगों को कोई नेक बात बताते हैं, कोई नेक अमल बताते हैं, मसलन की नमाज पढ़ो, या फिर हम कहते हैं कि ये बुरा काम है, इससे रुको। अब क्या होता है कि अगर वो शख्स हमारी बात ना माने तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसको बता दिया फिर भी ये नहीं मानता, या फिर हम बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं कि मैं इसे कहती रहती हूँ पर ये सुनते नहीं है। ठीक है, दुख तो होता है, लेकिन आपका काम है बताते रहना, प्यार से समझाते रहना, बस। हो सकता है कभी ना कभी असर हो जाए, लेकिन ये याद रखें कि अगर कोई शख्स नहीं मानता आपकी बात, तो आपकी पूछ नहीं होगी कयामत के दिन। किसी और के मामले में, जैसे आपकी औलाद के मामले में या आपके माँ बाप के मामले में या दोस्तों रिश्तेदारों के मामले में आपकी पूछ नहीं होगी। और एक और बात जो हमें यहाँ से पता चलती है वो ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर थे, खुशखबरी देने वाले थे, नदीर थे, डराने वाले थे, आगाह करने वाले थे, खबरदार करने वाले थे। लेकिन अल्लाह के साथ उनका रुबूबियत में यानी रब होने में या उलूहियत में या इलाह होने में कोई हिस्सा नहीं है। वलन, और हरगिज नहीं, तरदा, राजी होंगे, अनका, आपसे, अल यहूद, यहूद, वला नसारा, और नसारा, और ना नसारा। यहाँ पे नाइदर नॉर वाली बात हो रही है कि ना यहूद और ना नसारा कभी आपसे राजी नहीं होंगे। हत्ता, यहाँ तक कि तत्तबिआ, आप पैरवी करें, मिन,
मिल्लतहुम उन की तरीके की। तत्तबिआ, ताबा आइन इसका रूट है, इत्तिबा यत्तबिउ से है, इसका माना है पैरवी करना, फॉलो करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ये तब आपसे कभी भी राजी नहीं होंगे जब तक कि आप इनके दीन को फॉलो ना करें, इनके तरीके पर ना आ जाए। मिल्लतहुम उनका तरीका, ये नहीं कहा गया कि जब तक आप उनके दीन में कन्वर्ट ना हो जाए, बल्कि ये कहा गया कि उनके तरीके पर ना आ जाए, यानी वो खुश होंगे तब जब इस्लाम, जुडाइज्म या क्रिश्चियनिटी की तरह हो जाए। उनके तरीके से क्या मुराद है? यहूद का क्या तरीका था? यहूद का तरीका ये था कि वो रिलीजियस लीडरशिप को फॉलो करते थे, सही गलत का पता करने की कोशिश नहीं करते, अंधों की तरह जो कहा जाता था उसे मानते थे। वो रिचुअल्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते थे, लेकिन मॉरल्स, एथिक्स, हलाल, हराम, आखिरत और उसका अंजाम, उन चीज़ों पर वो ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते थे। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा फ़ोकस था स्पिरिचुअलिटी पे, मॉरल्स पर, एथिक्स पर और उन चीज़ों पर, लेकिन रिचुअल्स को वो बिल्कुल फ़ॉलो नहीं, यानी थोड़ा बहुत इस्लाम को फ़ॉलो करो, जिस तरह से हम अपने दीन को फ़ॉलो करते हैं। बहुत ज़्यादा गहराई में, बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। माना, समझा, नहीं समझा, जाना, नहीं जाना, अपने रिलीजियस लीडरशिप ने जो कह दिया उसे फ़ॉलो कर लिया। बस बहुत ज़्यादा इसको गहराई से फ़ॉलो मत करो, यानी ये वो चाहते थे। यानी वक़्त के मुताबिक या हालात के मुताबिक अगर ज़रूरत पड़ने पर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े, कोई अमल को छोड़ने की ज़रूरत पड़े या कोई अमल को अपनाने की ज़रूरत पड़े, कोई बदलाव करने की कोशिश पड़े कलाम में, या कहीं थोड़ा बहुत शिर्क करने की ज़रूरत पड़े जहाँ आपको दुनियावी कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है किसी गलत काम के ज़रिए, तो उसे होने दो, यानी थोड़ा लीनिएंट हो जाओ अपने रिलिजन में। बहुत ज़्यादा उसे स्ट्रिक्टली फ़ॉलो मत करो, बहुत ज़्यादा हलाल-हराम पर ध्यान मत दो, बहुत ज़्यादा आखिरत फ़ोकस होकर बहुत ज़्यादा लोगों को ना डराओ, यानी लीनिएंट हो जाओ, कहने का मतलब ये। तो वो चाहते हैं कि उस तरह से इस्लाम को फ़ॉलो करो जैसे कि और रिलिजन्स अपने-अपने अ, मज़हब को फ़ॉलो करते हैं। तो उसके जवाब में कहा जा रहा है कि कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक हुदल्लाहि अल्लाह की हिदायत, हुवल हुदा वही हिदायत है, वही सच्ची हिदायत है। तो हुदा है गाइडेंस और हवा, वला इन और अलबत्ता अगर अत्तबे इत्तबाअत पैरवी की आपने, अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, उनके डिजायर्स की। हुदा है गाइडेंस और उसका ऑपोजिट है हवा, हवा है ख्वाहिश नफ्स। बादा बाद इसके, अल्लदी जो जा अका आ गई आपके पास, मिनल इल्म इल्म में से, यानी अगर इल्म के आने के बाद भी आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, उनके मन मुताबिक अपने दीन को फॉलो किया, मा लका तो नहीं है आपके लिए, मिनल्लाहि अल्लाह से बचाने वाला, मिन वलियिन कोई हिमायती, कोई प्रोटेक्टर, कोई फायदा पहुंचाने वाला, कोई दोस्त, वला नसीर और ना ही कोई मददगार, मुश्किल में आपकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है और इन एक्सटेंशन हमसे भी कहा जा रहा है कि अपने इल्म को छोड़कर, जिसके पास इल्म आ गया उसे छोड़कर दूसरे तरीकों की पैरवी करने से ना तो अल्लाह की मदद आएगी और ना ही अल्लाह की तरफ से कोई मददगार होगा, ना कोई हिमायती होगा। आज आप देखें, आज हम सोचते हैं कि क्यों मुसलमान इतने ऑब्रेस्ड हैं, क्यों उनकी मदद अल्लाह नहीं कर रहा है। आप देखें कितना ज़्यादा हम दूसरों की पैरवी कर रहे हैं, दूसरों के तरीकों को अपना रहे हैं और खुद अपने दीन के तरीकों को छोड़ते जा रहे हैं। अगर कोई डांस करे पब्लिक में तो हम कहते हैं कितना कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर कोई नमाज पढ़े तो उससे शर्मिंदगी समझते हैं। बहुत से गुनाह आजकल ऐसे हैं जिनको कूल समझा जाता है, ये तो बहुत कूल है। और बहुत सी दीन की ऐसी चीजें हैं जिनको फॉलो करना बोरिंग और ऑप्रेशन समझा जाता है। कुरान को बोर चीज कहा जाता है और म्यूजिक को शौक कहा जाता है। शादी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहा जाता है और डेटिंग को और लिव इन रिलेशनशिप को मजा और फन कहा जाता है। बेहयाई को आजादी कहा जाता है और हिजाब को मजलूमियत कहा जाता है।
बच्चों का बड़ों के सामने जवाब देना बोल्ड और बहुत अच्छा समझा जाता है और बच्चों का चुप रहना दब्बू समझा जाता है। बिजनेस में चीटिंग करना स्मार्टनेस है, ईमानदारी बेवकूफ़ी है। हेलो या गुड मॉर्निंग करना बहुत ज़्यादा मॉडर्न है या स्टैंडर्ड है, लेकिन सलाम करना एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत बैकवर्ड है। हालाँकि सलाम अल्लाह का कलाम है, एक दूसरे के लिए दुआ है। अल्लाह का जब हम सलाम एक दूसरे को कहते हैं, तो अल्लाह ने हमें एक दूसरे को सलाम करने के लिए कहा है और ऐसा करने से अल्लाह दिलों में एक दूसरे के मोहब्बत डाल देता है। क्योंकि पूरी दुनिया इसको अच्छा समझती है, गलत चीज़ को गलत नहीं समझती। तो हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं, उनको राज़ी करने के लिए, टू फिट इन, हमें उनके अंदर फिट होना है, इसलिए उनके तरीकों को हम अपना रहे हैं। तो जब हम उनके तरीकों को फॉलो कर रहे हैं, अपने दीन को छोड़ दिया है, तो अब हम देख रहे हैं कि सब तरफ से मुसलमान सफ़र कर रहे हैं और अल्लाह की मदद नहीं आ रही है और आखिरत में भी ऐसे लोगों की मदद नहीं की जाएगी। और इस आयत में एक बात और जो हमने पढ़ी है वो ये है कि असल हिदायत अल्लाह की तरफ से है। हिदायत किसी और फ़िरके से जुड़ना नहीं बल्कि कुरान से जुड़ना है। अगर हम सही अमल करेंगे, कुरान के मुताबिक अमल करेंगे तो थोड़ा-सा अमल भी काफ़ी हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा अमल भी फ़ायदा नहीं देगा अगर वो सही नहीं है। कुरान हिदायत है। कुरान को कुरान में नूर कहा गया है। नूर का मतलब है रोशनी। हम रोशनी को नहीं देखते हैं, बल्कि रोशनी के ज़रिए दूसरी चीज़ों को देखते हैं। हमें कुरान के ज़रिए दूसरी बातों को समझना है। साइंस को, हिस्ट्री को, साइकोलॉजी को, सियासत को, बिज़नेस को, तिजारत को, दूसरे रिलीजियस टेक्स्ट को, आलिमों की बातों को, स्कॉलर्स की बातों को, दूसरे फ़िरकों की बातों को, सहाबियों की बातों को भी, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को भी कुरान की रोशनी के ज़रिए समझना है। ये नहीं कि हम दूसरी बातों के और दूसरी किताबों के और दूसरी चीज़ों के ज़रिए कुरान को समझें। हम क्या देखते हैं कि अच्छा इस किताब में ये लिखा हुआ है, साइंस ने ये कहा है और इस स्कॉलर ने ये कहा है और इस इमाम ने ये कहा है, तो इसके ज़रिए हम कुरान की इस आयत को इस तरह से समझेंगे। नहीं, बल्कि कुरान रोशनी है। कुरान के ज़रिए आप दूसरी बातों को, दूसरी चीज़ों को सही समझेंगे। क्योंकि वर्ड ऑफ अल्लाह इज़ सुप्रीम। अल्लाह की बात सबसे ऊपर है, सबसे सही है। वो सब जानता है। साइंस में आज एक थ्योरी आती है तो कुछ अरसे बाद, कुछ डिकेड्स बाद कहते हैं कि नहीं, ये थ्योरी गलत है। अब ये थ्योरी सही है। यानी उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई दूसरी थ्योरी आती है और उसे सही मान लिया जाता है। यानी किसी चीज़ का कोई पक्का सबूत नहीं है। और रिसर्च होती है, चीज़ें बदलती हैं, बातें बदलती हैं। उसी तरह से और दूसरे टेक्स्ट हैं, कोई कुछ बात कहता है, कोई कुछ बात कहता है। कुरान फिक्स है, कुरान की आयतों में कोई बदलाव नहीं होने वाला क़यामत तक। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।